Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. So, dear students, today in this video we will study another type of cellular organization, that is colonial organization. As in the previous lecture we studied that there are three types of organization. The cells organize in three ways to make the bodies of organisms: unicellular organization, colonial, and multicellular organization. So we have already studied unicellular organization. Now we will study another type of organization, that is colonial organization. So as the name indicates, what is colonial organization? That this organization consists of those organisms which live in the form of colony. That is, many unicellular organisms, in other words, many unicellular organisms live together in the form of colony. Colonial organization में क्या होता है? Organisms live in the form of group or colony. So colonial organization में organisms unicellular होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, लेकिन they live together in the form of colony. लेकिन ये ग्रुप्स के फॉर्म में या कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं. Such organisms are called, या such type of organisms are called colonial organisms, and this type of cellular organization is called colonial organization. For example, Volvox. Volvox is a green alga. Alga is a singular, while its plural is algae. Its plural is algae, A-L-G-A-E. And you know the algae are plant-like protists. Algae are plant-like protists. So algae is plural, alga is singular. Volvox is a green alga found in water, shows colonial organization. Volvox, it is a common example of unicellular colonial organism. That is, hundreds of Volvox cells make a colony. Hundreds of Volvox cells make a colony. Now dear students, look into your textbook, page 17. Colonial organization. Volvox, which is a green alga, it is a common example of unicellular colonial organisms. ये जो Volvox है, ये unicellular colonial organism का एक common example है. Means कि Volvox जो होता है, ये unicellular organism है, इसकी body सिर्फ एक सेल से बनी है, लेकिन hundreds of Volvox cells make a small Volvox colony. लेकिन ये जो unicellular Volvox है, green alga है, ये colony के फॉर्म में रहता है. So it is a common example of unicellular colonial organisms. It lives in water. ये water में मौजूद होता है, रहता है. Hundreds of Volvox cells मिल के क्या बनाते हैं? Make a small Volvox colony. Many small colonies make a big colony. और फिर छोटे कॉलोनीज, छोटे छोटे ग्रुप्स मिलके एक बड़ी कॉलोनी बनाती है. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर. ये ऑर्गेनिजम्स वोल्वॉक्स जो है ये यूनिसेलुलर है, एक सेल से बना है, लेकिन दे लाइव इन कॉलोनियल फॉर्म. ये कॉलोनीज के फॉर्म में रहता है, ग्रुप्स के फॉर्म में रहता है. सो दे आर कॉल्ड कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स and their organization is called colonial organization. So hundreds of Volvox cells make a small Volvox colony. ये देखें, ये एक small colony है, ये दूसरा है, और ये small colonies मिलके एक large colony बनाते हैं. Many small colonies make a big colony. Most of the functions are performed by every cell. Most of the functions are performed by every cell. कॉलोनी में जो हर एक Volvox सेल होता है वो ज़्यादातर अपने
लाइफ फंक्शंस खुद करती है, लेकिन हाउएवर an individual wall-walk cell cannot live independently as the cells of colony are dependent on each other। तो इसका मतलब ये है कि कॉलोनी में हर एक वॉल-वॉक सेल्स ज़्यादातर अपने लाइफ फंक्शंस खुद करते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल वॉल-वॉक सेल इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। वाई? एज द सेल्स ऑफ द कॉलोनी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि कॉलोनी में जो हंड्रेड्स ऑफ वॉल-वॉक सेल्स रहते हैं वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर मोबिलिटी वाइल अदर सेल्स आर फॉर रिप्रोडक्शन। कॉलोनी में कुछ सेल्स इस तरह होते हैं जो कि मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज होते हैं, वो कॉलोनी को मूवमेंट में हेल्प देते हैं, और कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। तो कॉलोनी में हर एक वॉल-वॉक सेल ज़्यादातर फंक्शंस खुद करते हैं, जो वाइटल फंक्शंस है, रिस्पायरेशन वगैरह खुद करते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस के लिए ये एक दूसरे पे कॉलोनी में क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। सो दे कैन नॉट लाइव इंडिपेंडेंट एज द सेल्स ऑफ कॉलोनी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, के जिस तरह हमने पढ़ा कि कुछ सेल्स मोबिलिटी यानी मूवमेंट, मोटिलिटी में हेल्प देते हैं, कॉलोनी को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, और कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। सो देयरफॉर द डिवीजन इज अबव द सेलुलर लेवल एंड देयर इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स मोर कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब ये है कि यहाँ पे कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन ऑफ लेबर है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस है, वो क्या है, सेलुलर लेवल से, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या है, कम्प्लेक्स है, हाई है। कि यहाँ पे कुछ सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपने पढ़ा कि वहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है दैट इज़ अमंग ऑर्गेनेलिस, कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन करते हैं कॉलोनी में, कुछ मूवमेंट में हेल्प देते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या है, हाई लेवल पे है। एंड देयर इज़ अ ट्रेंड टुवर्ड्स मोर कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो ही हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर और भी क्या है, कम्प्लेक्स है, और वहाँ पे फिर हर एक फंक्शन के लिए अपना एक स्पेशलाइज्ड क्या होता है, सेल होता है, ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।